Hello children, myself Khushbu Malik from Takshashila English School, and today we are going to learn our second part of first chapter Two Big State of Standard 7th. Now last time we have studied about the early life of Harshvardhan as well as we have studied about its administrative work. And now today's our topic is imprints left by Harshvardhan. Imprints means marks, जो छाप है जो हर्षवर्धन ने छोड़ी है इंडिया में, उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे. Harsh built many rest houses, wells, stepwells, lakes, mattas and viharas and also prohibited animal slaughter. हर्षवर्धन ने काफी सारे रेस्ट हाउसेस बनवाए. उन्होंने तालाब, जो स्टेप वाले कुएं होते हैं वो, मट्स, विहाराज बनवाए और साथ ही साथ जो एनिमल्स की बलि दी जाती थी, जो एनिमल्स हंटिंग होती थी, उसे भी स्टॉप करवाया अपने किंगडम में. Every year he organized a Buddhist religious meet and every 5 years he would organize a huge religious congregation at Prayag. Now every year means हर साल जो राजा हर्ष थे वो एक बुद्धिस्ट रिलीजियस की मीटिंग अरेंज करते थे. साथ ही साथ हर 5 साल में वो एक बहुत ही बड़ी रिलीजियस मीटिंग अरेंज करते थे प्रयाग में, जो भी प्रेजेंट टाइम पे इलाहाबाद के नाम से फेमस है. There he would donate generously till his entire treasury was emptied and would even give away the ornaments he would be wearing at that time. Now in this meeting, जो हर 5 साल में हर्षवर्धन ऑर्गेनाइज करते थे प्रयाग में, इस मीटिंग में जो हर्षवर्धन है वो अपना सारा खजाना खाली कर देते थे दान देकर, डोनेट करके. साथ ही साथ उस टाइम पे उन्होंने जितने भी ऑर्नामेंट्स, जितनी भी ज्वेलरी पहनी हुई होती थी, वो सारी ज्वेलरी वो डोनेट कर देते थे इनटू दिस रिलीजियस मीटिंग व्हिच ही वाज होल्डिंग एट द प्रयाग. द ग्रेट संस्कृत पोएट एंड राइटर बाणभट्ट adorned his court. His famous works हर्षचरित एंड कादम्बरी आर फेमस इवन टुडे. जो राजा हर्ष थे उनके कोर्ट में बहुत ही बड़े संस्कृत पोएट और राइटर थे जिनका नाम था बाणभट्ट, और उनके जो फेमस वर्क्स है वो है हर्षचरित एंड कादम्बरी, जो आज भी बहुत फेमस है इनटू द संस्कृत लैंग्वेज. We come to know about many important aspects of King Harshvardhan's reign from Harshcharit. And as well as if we want to get the more detailed information about the Harshvardhan's rule, about his administration, about the life of people during his rule, so the detailed information we can get from the works or the book which was written by the Banbhat named Harshcharit. King Harsh himself was a writer and he wrote 3 plays नागानंद, रत्नावली and प्रियदर्शिका. जो किंग हर्षवर्धन थे वो खुद भी एक बहुत ही अच्छे राइटर थे और उन्होंने 3 जो नाटक थे, 3 जो प्लेस थे वो लिखे थे, और वो है नागानंद, रत्नावली एंड प्रियदर्शिका. नाउ यहाँ पे आप एक मैप देख रहे हैं. नाउ इन दिस map you can see this pink portion. Now this is the kingdom of Harshvardhan in our India, which is situated into the north of the India and which is ending till the Narmada river into the center of the India. Now our next topic is Emperor Harshvardhan's empire. जो राजा हर्षवर्धन थे उनका एम्पायर, उनके किंगडम के बारे में हम पढ़ेंगे. उसमें हम पढ़ेंगे नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में. नाउ जो किंग हर्ष एक्सटेंडेड ऑल पॉसिबल असिस्टेंट टू आचार्य शीलभद्र एंड मेड नालंदा इनटू अ वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटी. जो राजा हर्षवर्धन थे उन्होंने हर संभव प्रयास किए और हर संभव सहायता की आचार्य शीलभद्र की को
और क्योंकि वो नालंदा यूनिवर्सिटी को वर्ल्ड फेमस बना सके, उसके लिए उनकी जो भी हेल्प जरूरी थी वो उन्होंने आचार्य शीलभद्र को दी, जो कि नालंदा यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल थे। The university had access to the revenues of 100 villages given to them by King Harsh for its upkeep and maintenance, and for the running of the Nalanda University. For the maintenance, for the care of the Nalanda University, Harshvardhan has donated the income of 100 villages of his kingdom to the Nalanda University. जो राजा हर्ष थे उन्होंने अपने किंगडम के जो 100 गांव थे उसकी जो इनकम थी उसको नालंदा यूनिवर्सिटी में डोनेट किया था, जिससे वो यूनिवर्सिटी की अच्छे से देखभाल कर सके और अच्छे से प्रॉपर मेंटेन कर सके। Renowned chemist Acharya Nagarjuna, who proved that iron, arsenic and mercury ash could be used as a medicine, also belonged to Nalanda University. Now renowned means famous. जो फेमस केमिस्ट आचार्य नागार्जुन थे उन्होंने प्रूव किया कि आयरन मीन जो लोहा होता है वो, आर्सेनिक इट इज अ वन काइंड ऑफ पॉइजन, एंड मर्क्यूरी विच इज मेनली यूज्ड इन थर्मोमीटर, इन तीनों मटेरियल्स की जो राख है, ऐश है, वो दवाई की तरह यूज की जा सकती है। ऐसा प्रूव किया आचार्य नागार्जुन ने, जो मीन्स नालंदा यूनिवर्सिटी के एक बहुत ही फेमस केमिस्ट थे। नाउ हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी which is presently situated into the Bihar state of India. Now some things to know about Nalanda University. Now first is student had to clear an entrance test for admission into the Nalanda University. Now those students who want to study into the Nalanda University, now they have to give an entrance test for the admission. Like present time we are giving the test and we are getting the admission. Like that the student had to clear the entrance test for the admission into the Nalanda University. Free education, lodging and boarding were provided in Nalanda University. Now साथ ही साथ जो फ्री एजुकेशन है means the student didn't have to pay any kind of fees. Along with that, lodging means dining facility, the food facility also provided free of charge to the students, and along with that boarding means the hostel facilities were also provided free of charge to all the students who were studying into the Nalanda University. The extensive library of Nalanda University was known as Dharmaganj. जो सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी नालंदा यूनिवर्सिटी की, ना उसे धर्मगंज के नाम से जाना जाता था। Now our next topic is the life of the people during हर्षवर्धन्स रूल। Now किस टाइप की लाइफ जो पीपल थे वो जीते थे हर्षवर्धन के रूल में। Now just pay attention over here. Information about the reign of King Harsh is available from the writings of Chinese traveler Yuan Sheng. जो हर्षवर्धन है, अगर उनके राज्य के बारे में, अगर उनके रूल के बारे में हमें डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए, सो वो हमें जो चाइनीज ट्रैवलर थे जिनका नाम था ह्यूएन सेंग, ना उनकी जर्नी डायरी थी, उससे हमें वो सारी चीज़ें पता चल सकती है। Towns and villages of that time were fortified and had huge gateways at their entrance. जितने भी टाउन्स थे, जितने भी विलेजेस थे, सबके सब वो किले के अंदर बने हुए थे। चारों साइड्स पे से बड़ी बड़ी दीवारें होती थी और किले के अंदर टाउन्स एंड विलेजेस बने हुए थे, और उन सब पे जो एंट्रेंस गेट थे वो काफी बड़े होते थे उस टाइम पे। द सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू 4 ग्रुप्स, और जो सोसाइटी थी, जो समाज था, वो 4 अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइडेड था। एज ऑलरेडी इन द 6th स्टैंडर्ड वी हैव स्टडीड अबाउट द 4 ग्रुप्स ऑफ द सोसाइटी, एंड दे वर क्षत्रिय, ब्राह्मण्स, वैश्यास एंड
Shudras. Now into these four groups, the whole society was divided into the Harshvardhan's rule. While the Parda system and intercaste marriages were not prevalent at that time. Now उस समय जो पर्दा सिस्टम मीन्स घूंघट निकालना, साथ ही साथ इंटरकास्ट मैरिजेस थी, मीन्स अंदरों अंदर जो कास्ट में मैरिजेस होती थी, ये सारे जो रिचुअल्स है उस टाइम पे पीपल्स फॉलो नहीं करते थे, बल्कि जो द कस्टम्स ऑफ द सती, चाइल्ड मैरिजेस एंड पॉलीगैमी हैज स्टार्टेड बाय देन. बट उसके बाद जो सती प्रथा, कस्टम्स ऑफ सती मीन्स जो सती प्रथा थी, जो चाइल्ड मैरिजेस मीन्स जब चाइल्ड होते थे तभी उनके मैरिज हो जाती थी, साथ ही साथ पॉलीगैमी मीन्स मोर देन वन वाइव्स. नाउ ये सारे जो बैड रिचुअल्स थे वो शुरू हो गए थे बाद में इनटू द हर्षवर्धन्स रूल. द लोकल डाइट कंसिस्टेड ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, wheat, राइस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. और जो लोकल डाइट में जो पीपल्स थे उनका जो लोकल फूड था वो था मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, जो दूध और दूध की जो बनावटें होती है, जैसे दही है, छाछ है, घी है, वो सारी चीज़ें. साथ ही साथ वीट मीन्स गेहूँ, राइस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सारी चीज़ें जो पीपल है वो लोग खाते थे ड्यूरिंग द रूल ऑफ किंग हर्षवर्धन. दे वॉर क्लीन सिंपल वाइट क्लोथीज. और जो पीपल होते थे वो बहुत ही साफ और सिंपल और वाइट कलर के क्लोथ्स पहनते थे. उसमें मैन वॉर धोतीज एंड वुमेन वॉर साड़ीज. उसमें जो मैन होते थे वो लोग धोती पहनते थे और जो विमेन्स होती थी वो लोग साड़ीज पहनती थी. देयर ऑर्नामेंट्स लाइक रिंग्स, बैंगल्स, ब्रेसलेट्स, नेकलेसेस were made from flowers. और उस टाइम पे जो ज्वेलरी वो पहनते थे उसमें ज्वेलरीज में जो रिंग्स है, बैंगल्स है, ब्रेसलेट्स है, नेकलेसेस है, वो सारी चीज़ें फूलों से बनी हुई होती थी. जैसे अभी प्रेजेंट टाइम पे अलग अलग मेटल्स की बनी हुई होती थी. नाउ वैसे ही हर्षवर्धन के रूल के टाइम पे जो फीमेल्स होती थी वो फूलों से बनी हुई ज्वेलरीज पहनती थी. चेस एंड गेम्स ऑफ डाइस वर पॉपुलर मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट. और जो पीपल से उनके जो एंटरटेनमेंट के लिए वो लोग चेस एंड गेम्स ऑफ डाइस मीन जो शतरंज होता है, ये दोनों गेम्स बहुत ही पॉपुलर थी एज अ मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट ऑफ द पीपल. एक्रोबेट्स एंड कंज्यूरर wandered from villages to village entertaining people. Now acrobats मीन जो रोप डांसर्स होते हैं, जो रोप पे चल के अलग अलग जो आर्ट दिखाते हैं वो. साथ ही साथ कंज्यूरर मीन जो मैजिशियंस होते थे ना, वो लोग एक विलेज से दूसरे विलेजेस में घूमते थे फॉर एंटरटेनिंग द पीपल. मीन्स पीपल्स को एंटरटेनिंग करने के लिए वो लोग एक गांव से दूसरे गांव घूमते थे. फार्मिंग एंड एनिमल हस्बेंड्री वर द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल. और हर्षवर्धन के रूल के टाइम पे जो पीपल थे उनका जो मेन एक्टिविटी थी वो थी फार्मिंग मीन्स खेती करना, साथ ही साथ एनिमल हस्बेंड्री मीन्स जो एनिमल्स होते थे उनकी देखभाल करना. ये दोनों ही मेन वर्क्स थे विच इज डन बाय द पीपल इन द हर्षवर्धन्स रूल. Now land revenue was 1/6 of the production. Now जो फार्मर्स होते थे, नाउ उनका जो भी टोटल उत्पादन होता था, जो भी टोटल प्रोडक्शन होता था या तो इनकम होती थी, उसका जो 1/6 पार्ट होता था वो उनको एज अ टैक्स किंग को देना पड़ता था. इंटरनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड वॉज कैरिड आउट बाय द वैश्याज. और जो वैश्यास थे इट मीन्स जो बिजनेसमैन थे, ट्रेडर्स थे. नाउ दे वर कैरिड आउट द इंटरनल मीन्स इन इंडिया ओनली एज वेल एज द इंटरनेशनल मीन्स अलॉन्ग विद द अदर कंट्रीज. नाउ दैट ट्रेड वॉज कैरिड आउट बाय द वैश्यास इन द रूल ऑफ हर्षवर्धन. A highway from Patliputra to Bhrugu Kutch, which is present time is known as Bharuch Port,
was built by the state for the trade and transportation of the good. और राजा हर्षवर्धन थे वो ट्रेड के लिए और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गुड्स, जो गुड्स था उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए राजा हर्षवर्धन ने एक हाईवे बनवाया था पाटलिपुत्र इन बिहार पटना टू द भृगु कच्छ विच इज प्रेजेंटली द भरूच। वहां पे एक हाईवे बनवाया था फॉर द ट्रेड एज वेल एज द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गुड्स। गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स वर यूज्ड फॉर द कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन। जो कॉमर्शियल ट्रांजैक्शंस होते थे, जो व्यापार के ट्रांजैक्शंस होते थे, नाउ दैट उसके लिए जो गोल्ड और सिल्वर के जो सिक्के होते थे, जो सोने और चांदी के सिक्के होते थे एज अ करेंसी, वो यूज किया जाता था व्यापार करने के लिए। ऑर्नामेंट्स, स्टैच्यूज, आइवरी एंड कार्व्ड वुडन पीसेस वर एक्सपोर्टेड। नाउ ऑर्नामेंट्स मीन जो ज्वेलरीज होती थी वो, स्टैच्यूज मीन्स मूर्तियां, नाउ आइवरी, आइवरी मीन्स जो हाथी के दांतों से बनी हुई चीजें होती थी वो, साथ ही साथ जो वुडन की जो चीजें बनी हुई होती थी वो सारी चीजें हर्षवर्धन के किंगडम में से इंडिया में एज वेल एज अदर कंट्रीज में एक्सपोर्ट किया जाता था। द एक्सपोर्ट ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स फ्रॉम इंडिया इंक्रीज्ड हर प्रॉस्पेरिटी। अब अलग अलग तरीके का जो मटेरियल्स इंडिया से बेचा जाता था या तो सेल किया जाता था, उसकी वजह से जो इंडिया है वो दिन ब दिन प्रॉस्परस मीन्स वेल्दी कंट्री बनती गई। ड्यूरिंग द रेन ऑफ किंग हर्ष, इंडिया हैड गुड बिजनेस रिलेशंस विथ रोम which led to the inflow of gold in India। जो हर्षवर्धन के रूल था, जो हर्षवर्धन का रूल था, उस समय इंडिया के जो रोम कंट्री है उसके साथ बहुत ही अच्छे बिजनेस रिलेशंस थे। ना उसकी वजह से बहुत सारा जो सोना था वो इंडिया में आता था। पीपल फॉलोड हिंदुइज्म, Buddhism and Jainism but were tolerant towards other religions। और जो पीपल्स थे हर्षवर्धन के किंगडम में वो लोग हिंदुइज्म रिलीजन, बौद्धिज्म रिलीजन एंड जैनिज्म रिलीजन फॉलो करते थे, पर वो दूसरे रिलीजियंस की तरफ भी बहुत ही काइंड थे। नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक यू कैन सी द पिक्चर। Now this is the picture of the Yuan Sheng, was a Chinese traveler who came to the India during the Harshvardhan's rule। Now साइड में ही हम देख रहे हैं मैप दिया हुआ है, जहाँ पे जो रेड लाइन आप देख रहे हैं, now that is the route of the Yuan Sheng when he traveled to the India। So now let's study about the Yuan Sheng। Now when he came to the India, so Yuan Sheng came to the India in 629 and he went back to the China in 645 CE। The Chinese traveler Yuan Sheng visited India during Harsh reign and studied Buddhism at Nalanda University for 5 years। जो चाइनीज ट्रैवलर थे Yuan Sheng, उन्होंने इंडिया विजिट किया था हर्षवर्धन के रूल के टाइम पे, साथ ही साथ उन्होंने जो नालंदा यूनिवर्सिटी थी वहाँ पे जो बौद्धिज्म रिलीजियस है वहाँ उसका 5 सालों तक उसकी स्टडी की थी। नाउ थिंग्स टू नो अबाउट Yuan Sheng। Yuan Sheng stayed in India for 15 years and visited different parts of India। Now जो Yuan Sheng थे, he came to the India in 629 CE and he went back to the China in 645 CE। So for that 15 years the Yuan Sheng stayed in India, means 15 सालों के लिए जो Yuan Sheng थे वो इंडिया में रहे, उसमें से 5 साल के लिए उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटीज में जो बौद्धिज्म का रिलीजियस था उसके बारे में स्टडी की, साथ ही साथ जो डिफरेंट प्लेसेस थी इंडिया की वहाँ पे वो घूमे थे। He has described the social, political and religious conditions of that time। and जो Yuan Shengs थे
उन्होंने जो सोशल लाइफ, जो पॉलिटिकल लाइफ एंड रिलीजियस कंडीशंस कैसी थी पीपल की ड्यूरिंग द रूल ऑफ हर्षवर्धन एंड ड्यूरिंग द रूल ऑफ द पुलकेशी टू। नाउ इसके बारे में उन्होंने अपनी जर्नी डायरी में लिखा है। In 645 CE, he returned to China via Central Asia and took with him many books, relics and statues. और जो ह्यूएनसेंग थे वो चाइना वापस चले गए इन 645 CE। पर जब वो वापस गए तब वो अपने साथ बहुत ही ज़्यादा बुक्स, जो रेलिक्स थी, जो स्टैच्यूज थे, बुद्धिज्म रिलीजियस के रिलेटेड वो अपने साथ में लेके गए थे। ड्यूरिंग हिज स्टे ही अटेंडेड द 6th बुद्धिस्ट रिलीजियस कांग्रेगेशन एट प्रयाग। नाउ जो ह्यूएनसेंग थे जब हर्षवर्धन के रूल में वो आए थे इंडिया, तब उन्होंने जो 6th बुद्धिस्ट रिलीजियस की मीटिंग थी जो प्रयाग में हेल्ड की जाती थी वो उन्होंने अटेंड की थी। नाउ some important things which the Huansang has noted about the Harshvardhan's rule. Now there were 100 Buddhist mutts in Harsh kingdom. जो हर्षवर्धन थे मेनली उनके जो किंगडम था उसमें जो बौद्ध रिलीजियंस के जो मठ थे, वैसे 100 मट्स हर्षवर्धन के किंगडम में थे। अब ये बात ह्यूएनसेंग ने नोट की थी जब वो इंडिया में आए थे। People lived a simple, pious and peaceful life based on living by rules of good moral conduct and justice. Cheating and breach of promise were considered sinful. जो people थे हर्षवर्धन के रूल में वो लोग बहुत ही ज़्यादा सिंपल थे। पायोस मीन्स वो बहुत ही ज़्यादा डिवोटेड थे, मीन्स धार्मिक थे। साथ ही साथ वो बहुत ही शांत लाइफ जीते थे जो गुड मॉरल वैल्यूज पे कंडक्ट होती थी। साथ ही साथ जो जस्टिस मीन्स न्याय से वो लोग सीधे साधे सिंपल लाइफ जीते थे ना। उस टाइम पे जो चीटिंग और ब्रीच ऑफ प्रॉमिस, जो प्रॉमिस तोड़ते थे या प्रॉमिस तोड़ना या चीटिंग करना वो बहुत ही बड़ा पाप माना जाता था ड्यूरिंग द हर्षवर्धन्स रूल। नाउ दिस मच इनफ फॉर टुडे। नाउ अदर थिंग्स वी विल लर्न इन अवर पार्ट 3. थैंक यू एवरीवन।